All right, dear students, here is our second chapter, using the scientific method. And this article has been written jointly by Daryl Bernard and Lon Edwards. ये जो आर्टिकल है बेटा, इसके जॉइंट ऑथर्स हैं डेरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड्स. As is evident from the title of the chapter, जैसा कि इस आर्टिकल का, इस चैप्टर का टाइटल है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इट सजेस्ट, इससे हमें पता चल जाता है that this lesson actually gives us an insight into the working of the scientific method. इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि how the scientific method has actually, the use of scientific method has actually changed our living style. कि जो scientific method का इस्तेमाल है उसने किस तरह के असरात मुरतब किए हैं हमारी जिंदगियों पर, उससे हमारी जिंदगियां किस तरह से तब्दील हो गई हैं. What kind of lives did we live in the past? Past में जो है हम किस तरह की जिंदगियां गुजारते थे. What kind of lives do we live today? आज हम किस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं. और when we talk about the influence of science upon human life, जब हम इंसानी जिंदगी पर साइंस के इन्फ्लुएंस, साइंस के असर की बात करते हैं, तो we I mean don't find any area. It's really hard for us to find an area where we cannot relate science to, which we cannot relate science to. हमें कोई ऐसा एरिया नहीं मिलता जिससे हम साइंस को रिलेट ना कर सकें. Be it food, be it our eating habits, be it our luxury time, जो एरिया आप उठा लें उसमें हमें साइंस की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है. और इसमें डेरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड्स जो हैं वो यही बात कर रहे हैं. All of us have benefited. बेनिफिट का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, फायदा उठाना. और बेनिफिट का यहाँ सिनोनिम गेन भी कर सकते हैं, GAIN. All of us have benefited greatly, immensely from the use of scientific method in solving. Solve का मतलब होता है हल करना, और सिनोनिम कर सकते हैं resolving, RESOLVING. Problems, issues, challenges such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement. Next slide दीजिए. Improvement का synonym हम betterment कर सकते हैं. In communication and transportation. पिछली स्लाइड पर आज हम सब ने सेहत की बहाली, खुराक की पैदावार और महफूज बनाने, अपने घरों की तामीर के तरीकों को बेहतर बनाने और अपने ज़राए नकलो हमल, ट्रांसपोर्टेशन, और अपने ज़राए मवासिलात, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बड़ी हद तक फायदा उठाया. एक बार फिर सुन लीजिए कि हम सब ने सेहत की बहाली, खुराक की पैदावार और खुराक को महफूज बनाने, अपने घरों की तामीर, ज़राए नकलो हमल और ज़राए मवासिलात को बेहतर बनाने जैसे मसाइल के हल करने के लिए साइंसी तरीक़ाकार से बहुत ज्यादा फायदा उठाया है. नेक्स्ट स्लाइड जी. Although not only have our ways of living changed, not only, ना सिर्फ ये, our ways of living, our style of living changed. change का सिनोनिम alter कर सकते हैं, ALTER. Not only have our ways of living changed, ना सिर्फ हमारे जीने का तरीकाकार बदल गया है, but the people themselves have also been changed. बल्कि लोग खुद भी तब्दील हो गए हैं. So it's not only our living style but the people themselves. बात सिर्फ हमारे लिविंग स्टाइल की नहीं है कि हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया, लोग खुद भी बदल गए. Their attitude is different. उनका attitude different है. Their attitude is more critical. उनका attitude ज्यादा critical हो गया. They believe in logical things now. अब वो ज्यादा logical चीजों पर यकीन रखते हैं. People are less superstitious. आज जो लोग हैं वो कदरे कम सुपरस्टिशियस हैं, तवहुमात पर कम यकीन रखते हैं.
Today we are better able to explain. Explain का we have been talking about its synonym repeatedly. हम बार बार इसके synonym पर बात कर रहे हैं. Explain का synonym elaborate किया जा सकता है. ELABORAT. Today we are better able to explain happenings, incidents, occurrences. INCIDENTS. Occurrence भी इसका हो सकता है. Today we are better able to explain happenings. आज हम उन वाकयात की ज्यादा बेहतर अंदाज में वजाहत करने के काबिल हैं which used to be considered, which used to be thought strange, awkward, AWOKWARD, odd, ODD, odd भी इसका सिनोनिम हो सकता है, अजीब, and mysterious, पुरस्रार, भेद भरे. सिनोनिम फर्टिव कर सकते हैं, FURTIVE. आज हम उन वाकयात की ज्यादा बेहतर अंदाज में वजाहत कर सकते हैं जिन्हें कभी अजीब और पुरस्रार समझा जाता था. आज हम उन वाकयात की ज्यादा बेहतर अंदाज में वजाहत कर सकते हैं जिन्हें कभी अजीब और पुरस्रार समझा जाता था. फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट द डिजीज ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी की ये जो मिर्गी की बीमारी है, इसके हवाले से देख लीजिए. जस्ट अ डिकेड बैक, कोई एक डिकेड पहले तक, मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड इट टू बी सम काइंड ऑफ डीमनाइजेशन. इससे समझा करते थे कि द बॉडी हैज बीन पोजेस्ड बाय डीमंस. जिस्म के ऊपर कोई डीमन ने, किसी बदरू ने, किसी इवल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया. इस वजह से द मैन इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस फिट्स. इस वजह से इस शख्स को ये फिट्स, ये दौरे पड़ रहे हैं. बट द साइंस रिवील्ड एक्चुअली दिस इज नथिंग ऑफ द काइंड. साइंस से हमें पता चला कि इस तरह की बात नहीं है. This actually is due to a nerval disease, nerval disorder. ये दर हकीकत एक nerval disorder है, which is called epilepsy, जिसे epilepsy कहा जाता है, मिर्गी कहा जाता है. Next slide दीजिए जी. Although there is still need, space, room, requirement for improvement, betterment, BETTERMENT. अगरचे अभी भी बेहतरी की जरूरत है. वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल, जनरली, कॉमनली, COMMONLY, less fearful, less afraid than our fathers and grandfathers were. Fathers and grandfathers, ancestors, ANCESTORS. अगरचे अभी भी बेहतरी की जरूरत है, लेकिन अब अमूमी तौर पर हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफजदा हैं. We are also more critical, logical, LOGICAL, in our thinking than our ancestors. हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अपने सोचने समझने के अंदाज में भी ज्यादा नाकेदाना रवैया रखते हैं, ज्यादा क्रिटिकल हैं. We tend to look for reasons. हम आमतौर पर वजूहात की तलाश करते हैं. This lesson should help you understand. Now we have talked about the synonyms of understand, comprehend, grasp. This lesson should help you understand. इस सबक से आपको ये समझने में मदद मिलनी चाहिए. How, कैसे, the use of scientific method. Next slide. This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people, transformed people, TRANSFORMED, altered people, ALTERED. इस सबक से आपको ये समझने में मदद मिलनी चाहिए कि कैसे साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल ने हमारे जीने के हालात को बेहतर बनाया है और लोगों को तब्दील किया है. It should also help you understand. इससे आपको ये समझने में भी मदद मिलनी चाहिए how you can make better use of the scientific method in your everyday living, your routine living, everyday routine living, ROUTINE. इस सबक से आपको ये समझने में भी मदद मिलनी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी रोजमर्रा जिंदगी में साइंसी तरीकाकार का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. All right, जी. The first area where they actually go on to discuss the use of scientific method is that of health. वो पहला एरिया जिसमें डैरल बर्नार्ड
और लॉन एडवर्ड्स साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, साइंसी इनकलाब की बात करते हैं, साइंस के इम्पैक्ट की बात करते हैं, वो है हेल्थ का एरिया, सेहत का एरिया, which has been discussed under the head of better control of diseases, जिसे उन्होंने better control of diseases की हेडिंग के साथ डिस्कस किया है। बीमारियों पर बेहतर अंदाज में काबू पाना। डिजीज का सिनोनिम एलमेंट कर सकते हैं, AILMENT। If you had been born 200 years ago, now they are actually trying to give you a picture of the past life, वो आपको माजी की जिंदगी की एक इमेजिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। If you had been born 200 years ago, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, 2 centuries back, 2 सदियां पहले पैदा हुए होते, you would have had about one chance, opportunity, मौका, OPPORTUNITY, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. So what are they saying? क्या कह रहे हैं? अगर आप 2 सदी पहले, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, तो आपके पास 1 साल की उम्र तक जिंदा रहने का 8 में से 1 मौका होता। What does that mean? इस बात का मतलब क्या है? It has been elaborated in the upcoming sentence. अगले सेंटेंस में इस बात की वजाहत कर दी गई है। In other words, दूसरे लफ्जों में, in those days, उन दिनों में, about 7 out of 8 babies died, perished, PERISHED, expired, EXPIRED, passed away भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, before reaching their first birthday। दूसरे लफ्जों में, उन दिनों 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले मर जाया करते थे। So that high was the mortality rate those days। उन दिनों जो mortality rate था, डेथ रेट था, वो इस कदर ज्यादा था among the infants। शीरख्वार बच्चों में, इन्फेंट्स में मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा हुआ करता था उन दिनों में। जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। सपोज, फर्ज करें, you had been an unusually, exceptionally, EXCEPTIONALL, strong little fellow and had lived through that first year। फर्ज कीजिए कि आप कोई गैर मामूली हद तक ताकतवर छोटे बच्चे होते और अपनी जिंदगी का पहला साल गुजार लेते। Now just assume that you were, born with that outstanding immunity। हो सकता है कि आपकी immunity जो है, कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज्यादा होती, and you managed to live through the first year of your life। आप अपनी जिंदगी का पहला साल गुजार लेते। Very likely, very probable, PROBABLE, गालिब इम्कान है, before you were 6 years old, इससे पहले कि आप 6 साल की उम्र को पहुंचते, you would have had small pox, आपको small pox, चीचक हो चुका होता, and by the time you reach the age of 12, और जब तक आप 12 साल की उम्र को पहुंचते, you would have had, next slide, गालिब इम्कान है कि जब तक आप 6 साल की उम्र को पहुंचते, आपको चीचक हो चुका होता, और इससे पहले कि आप 12 साल की उम्र को पहुंचते, you would undoubtedly have had, आपको बिलाशुबा हो चुका होता, measles, खसरा, whooping cough, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, बनफशी बुखार, एंड डिफ्थीरिया और खन्नाक। और इससे पहले कि आप 12 साल की उम्र को पहुंचते, बिलाशुबा आपको खसरा, काली खांसी, बनफशी बुखार और खन्नाक हो चुका होता। Now all this may be sounding strange to you। हो सकता है ये सारी बातें बेटा आपको अजीब लग रही हों, but this is what the reality was। हकीकत दर हकीकत यही है कि उन दिनों this was the kind of challenges that a baby faced on its birth। एक बच्चे को पैदा होने पर इन तमाम challenges का सामना रहता था। Even then your battle, your fight, FIGHT, your struggle, STRUGGLE, for life was not over। हत्ता कि फिर भी जिंदगी के लिए आपकी जंग खत्म ना होती। येलो फीवर, जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस, तपदिक,
cholera, हैजा, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार, and even influenza, और हत्ता के influenza once started, once began, once commenced, COMMENCED, अगर एक बार शुरू हो जाते, separate through a community, तो वो पूरे के पूरे मुआशरे में फैल जाया करते. नेक्स्ट स्लाइड सर. जर्द बुखार, तपदीक, हैजा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की बीमारियां अगर एक बार शुरू हो जाती तो वो पूरे के पूरे मुआशरे में फैल जाती. और I mean, it would be rather easy for you to understand all these things today in the given circumstances that we are living today in. आज जिस तरह के circumstances में हम रह रहे हैं, इनको सामने रखते हुए इस बात को समझना आपके लिए आसान होगा. उन दिनों भी ये एपिडेमिक्स जो हैं ये हुआ करती थी, ये जो प्लेग्स हैं, ये वबाएं जो हैं ये फूटती थी. और होता क्या था कि वंस इट स्टार्टेड, ये एक बार शुरू हो जाती तो तेजी के साथ ये पूरे कबीले, पूरे मुआशरे में फैल जाया करते. A person who lived to be more than 30 years of age, एक ऐसा शख्स जो 30 साल से ज्यादा की उम्र तक जी लेता, was in fact fortunate, lucky, LUCKY, ऐसा शख्स जो 30 साल से ज्यादा की उम्र तक जी लेता, दर हकीकत खुशकिस्मत समझा जाता था. It is unbelievable, incredible, 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 that such conditions, such circumstances, CIRCUMSTANCES, could have existed so short a time ago. ये बात नाकाबिले यकीन है कि इस तरह के हालात इस कदर कम अरसा पहले तक मौजूद रहे हों. Now they are talking about the kind of health facilities that we have today. अब वो बात करते हैं उन health facilities की, सेहत की उन सहूलियात की जो आज की दुनिया में, जदीद दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में हमें मुयस्सर है. Today, आज babies are born in hospitals. आज बच्चे अस्पतालों में पैदा हुआ करते हैं. Where there is little likelihood, next slide दीजिए. Where there is little likelihood, probability, PROBABILITY, chance, CHANCE, where there is little likelihood of their getting a disease, आज बच्चे अस्पतालों में पैदा हुआ करते हैं जहां उनके बीमार होने का इम्कान ना होने के बराबर हुआ करता है. लिटिल का मतलब थोड़ा सा नहीं है, लिटिल का मतलब है ना होने के बराबर. The way that the babies are taken care of today, आज जिस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाता है, especially on their births in hospitals, जब वो अस्पतालों में पैदा होते हैं, I mean they don't usually get a disease there. आमतौर पे उन्हें वहां कोई बीमारी नहीं होती. Young people are treated, are cured, CURED, to protect them, to guard them, GUARD, against smallpox, diphtheria and typhoid fever. चीचक, खन्नाक और टाइफाइड बुखार जैसी बीमारियों से महफूज रखने के लिए छोटे बच्चों का, यंग पीपल, छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है. किस तरह से इलाज किया जाता है? यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट. आपको ये वैक्सीनेशन वगैरह का पता होगा, जिस तरह से बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है. टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट, कैन होप, HOPE, एक्सपेक्ट का सिनोनिम एंटीसिपेट भी कर सकते हैं, ANTICIPATE, टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old. आज एक इंसान 70 साल की उम्र तक जी लेने की तवक्को, जी लेने की उम्मीद कर सकता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, मोर देन 30 years, 30 साल से ज्यादा, हैव बीन एडेड, का इजाफा कर दिया गया है. नेक्स्ट स्लाइड दे दीजिए सर. दूसरे लफ्जों में, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड, 30 साल से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है, टू द एक्सपेक्टेड लेंथ, एंटिसिपेटेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ. दूसरे लफ्जों में, इंसान की मुतवक्के जिंदगी में
30 साल से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है, एंड दैट इज अ वेरी बिग प्लस एज फार एज द साइंस, the impact of science, the use of science in health is concerned. सेहत के मैदान में जब हम साइंस की असर की बात करते हैं, साइंस के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो ये साइंस का एक बहुत बड़ा फायदा है कि टुडे वी आर एबल टू लिव अ मोर सिक्योर्ड लाइफ। आज हम कदरे ज्यादा सिक्योर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। These changes, these transformations have been made possible by the use of scientific method to resolve such problems as the causes, reasons, REASONS of disease and its prevention. ये तब्दीलियां बीमारी की वजूहात और उससे बचाव, बीमारी की वजूहात और उससे बचाव जैसे मसाइल के हल के लिए साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल के जरिए मुमकिन बनाई गई हैं। अगर ये तब्दीलियां हुई हैं तो ये कैसे हुई हैं? बिकॉज वी हैव स्टडीड द कॉजेज ऑफ डिजीजेस एंड वी हैव आल्सो स्टडीड द मेथड्स विद व्हिच वी कैन प्रिवेंट देम विद द हेल्प ऑफ साइंस। साइंस के जरिए हमने देखा कि बीमारी किन वजूहात से फैलती है, साइंस के जरिए हमने सीखा हाउ कैन वी एक्चुअली कंट्रोल दैट, हम इसे कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। दस वी हैव बीन एबल टू मेक ऑल दिस चेंजेस, इस तरह से हम ये सारी तब्दीलियां करने के काबिल हुए हैं। अब इस पोर्शन में, इस सेगमेंट में व्हाट हैव द ऑथर्स टोल्ड अस, ऑथर्स ने हमें क्या बताया है? दे हैव एक्चुअली told us about the kind of health conditions that prevailed in the past. उन्होंने हमें बताया है कि जो सेहत के किस तरह के हालात थे जो माजी में जिनका हमें सामना था, किस तरह से जो बेबीज हैं they used to die, किस तरह से बच्चे मर जाया करते थे। They have told us how insecure life was. उन्होंने हमें बताया कि जिंदगी किस कदर insecure थी। It was actually a consistent fight. ये consistent fight हुआ करती थी। और फिर उन्होंने बताया कि how all sorts of changes have been made possible, किस तरह से हर तरह की तब्दीलियों को मुमकिन बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए जी। दूसरा एरिया वेयर दे डिस्कस द यूज ऑफ साइंस इज दैट ऑफ आवर हाइजीन। वो दूसरा एरिया जहां वो साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल की बात करते हैं वो है हमारी हाइजीन, हमारी हाइजीन जो है हमारी, यानी कि सेहत और सफाई के जो मामलात हैं। इट इज डिफिकल्ट, इट इज हार्ड टू इमेजिन, टू परसीव what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. इस बात का तसव्वुर करना मुश्किल है कि हमारे बड़े शहरों में से कुछ में सिर्फ 100 साल पहले सफाई सुथराई के हालात कैसे हुआ करते थे। Into the narrow congested, congested, unpaved, unmetallic, गैर पुख्ता and poorly drained city streets, household domestic, DOMESTIC, घरेलू, garbage, trash, TRASH, and other refuse, other wastes, WASTE, were cast, फेंक दिए जाते। ये तस्वुर करना मुश्किल है कि सिर्फ 100 साल पहले हमारे बड़े शहरों में से कुछ में सफाई सुथराई के हालात किस तरह के थे। शहर की तंग, गैर पुख्ता और खराब और नाकिस नकासी आब वाली गलियों में घरेलू कूड़ा क्रिकेट और दूसरे फालतू मादे फेंक दिए जाते। नेक्स्ट चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड में है। एनिमल्स wandered through the streets. Animals, जानवर wandered, roamed, ROAMED, ranged, RANGED, through the streets feeding upon the garbage. जानवर उस कूड़ा क्रिकेट से खाना खाते हुए गलियों में फिरा करते। Outdoor toilets, toilet lavatory, LAVATORY, were common, were frequent. बाहर के बैतुल खला आम हुआ करते थे। Indoor toilets were not in vogue. उन दिनों इंडोर टॉयलेट्स का रिवाज नहीं था। Many of them situated, many of them located where human wastes, human refuses were drained into wells from which people obtained, people secured,
SECURED ड्रिंकिंग वाटर। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, बाहर के बैतुल खला आम थे और उनमें से ज्यादातर ऐसे मकामात पर वाक़े थे, उन जगहों के करीब वाक़े थे जो ऐसी जगहों में जा निकलते, उन कुओं में जा निकलते जहां से लोग पीने का पानी हासिल किया करते थे। सो लेट्स स्टॉप इट हियर फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ से कौन कौन से सवालात पॉसिबल हैं। जो हमने फर्स्ट पैसेज पढ़ा उसमें से एक सवाल बन सकता है कि हाउ हैज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन इंप्रूविंग द हेल्थ कंडीशंस। या वहां एक सवाल ये बन सकता है कि हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल ने बीमारी के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद में हमारी किस तरह से मदद की है। सो विल टेल देम, हम उन्हें बताएंगे। आंसर वुड बी, आंसर इस तरह से होगा दैट टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स। आज बच्चे जो है अस्पतालों में पैदा हुआ करते हैं। वेयर दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, जहां खास बीमारियों के खिलाफ उनका इलाज किया जाता है, खास बीमारियों से बचने के लिए उनका इलाज किया जाता है। वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, जहां उनके बीमार पड़ जाने का इम्कान बहुत कम होता है। एंड मोर देन 30 years have been added to the expected length of man's life, और एक इंसान की जिंदगी में 30 साल से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है। ऑल दिस हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये सब कुछ जो है साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल के बाइस मुमकिन हुआ है। एक और जो हम कर सकते हैं, यहाँ से जो अभी हमने दूसरा पैसेज शुरू किया है, यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन सम ऑफ आवर सिटीज 100 years ago। कोई 100 साल पहले हमारे बड़े शहरों में से कुछ में सफाई सुथराई के हालात कैसे थे। ऑलराइट बेटा, एंड द आंसर वुड बी, उसका जो पॉसिबली आंसर होगा वो होगा दैट द streets used to be congested, unpaved and poorly drained। जो सिटी स्ट्रीट्स होती थी वो congested हुआ करती थी, unpaved हुआ करती थी, और उसके साथ क्या था, poorly drained हुआ करती थी, यानी वहां नकासी आपका इंतजाम प्रॉपर नहीं होता था। Household garbage and other refuses were thrown into the streets। हाउसहोल्ड गार्बेज और दूसरे जो फालतू मादे हैं वो गलियों में फेंके जाते थे। सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। इस तरह से आप इसका जो है जवाब दे सकते हैं। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, आउटडोर टॉयलेट्स जो है वो भी क्या हुआ करते थे, कॉमन हुआ करते थे।